हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन एंड आपकी एग्ज़ाम अच्छी रही होगी प्री वाली. So today in this video we are going to discuss about SO pre-examination, and also we will be discussing about whether you should start preparing for your mains or not, and when you should start preparing and what you should do if you decide to start preparing after your results. So today in this video we are going to be talking about level of the paper and average attempts. So first of all, let's talk about the level of paper. So English was, I think, easy to moderate. So after collecting some data, I came to this conclusion that most of the people are scoring around 12 to 15 in English. So let's move on to the second part of reasoning. Reasoning was moderate to a little bit lengthy. Silox, inequality, direction, coding, decoding. These were the few topics which I think everyone has attempted, and besides that, many have solved at least one or two puzzles also. So most of the students have scored around, they are expecting their score around 30 marks. So if you have scored more than that, then very good. But if your score is lying near 30 in reasoning, then it's okay. It's totally fine. Now let's move on to let's talk about the most avoided section, quant section. Well, as you all know that IBPS has recently increased its difficulty level in quant in every exam, whether it was IBPS mains or any other exam. So the difficulty level is actually increased by IBPS. So yes, it was indeed a tough paper in SO examination. ऐसा कोई भी पहले पेपर ऐसा इतना टफ आया नहीं है जहाँ तक मुझे पता है. मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं, इतने मुश्किल तो नहीं थे वो. जैसा कि 31 दिसंबर को आया था. क्वेश्चन लेंदी भी थे और उनका लेवल भी अच्छा था. डायरेक्ट सॉल्व होने वाले क्वेश्चन ज़्यादातर थे ही नहीं. ओनली कह सकते हैं नंबर सीरीज एंड अप्रोक्सीमेशन और एक दो DI, बस इतना ही था जो मोस्ट ऑफ द पीपल ने अटेम्प्ट किया है. तो वी कैन से जो लोगों का एवरेज स्कोर रहा है क्वांट में वो 17 से 19 के आसपास है. तो हाँ, क्वांट का लेवल मॉडरेट टू हाई था. सो कमिंग टू द कंक्लूजन, it is really hard to predict about the expected cutoff of prelims this year, because as you all know, even though the paper level was overall high as compared to all the previous years, but the number of vacancies are also significantly low. So yes, it is really hard to predict the actual cutoff or do a prediction of nearby cutoff. But what we can do is we can consider the average marks of many candidates, and we can get an idea about whether our score is lying near to that or not, and based on that we can decide whether we should start preparing for mains or not. So if your score is lying around 60 or plus minus 3 overall score, so if your overall score is lying near to the 60, or we can say plus minus 3, 57 to 63, then I think you should at least start thinking about preparing for your mains. Now for those students whose score is around the average and they are from non-CSIT background, or if you are from any stream but you are expecting your score to be around 60 or 65 plus, then these two categories, in the first category they need time. I have considered the non-CSIT students and their average score is around 60 plus minus 3, because they need time to cover their syllabus, and those who have chances about clearing their pre. So these two categories should start preparing for mains as early as possible, in my opinion. So now let's come to the section about how to prepare for your mains. We all know that syllabus is very wide, and we need to cover at least with the average depth, or we can say the medium depth. So also you need to keep in mind that you need to score as much as you possibly can in order to make it to the end. So what will be the ideal way to prepare for your mains? So this way is the best way. ये सबसे बेस्ट वे है मेंस की प्रिपरेशन के लिए. वैसे तो इसी को फॉलो करना चाहिए सभी को समय रहते हुए, लेकिन डिपेंड करता है लोगों की एफिशिएंसी पे, कितना लोग कितने टाइम में कवर कर पाते हैं. उस हिसाब से ही आपको डिसीजन लेना चाहिए. एट द एंड आपकी एफिशिएंसी को आपको ही पता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो आइडियल वे है सिलेबस कवर करने का वो ये है कि सबसे पहले आपको सिलेबस को देखना है. सिलेबस में हर एक एक करके सब्जेक्ट को उठाना है, और सब्जेक्ट को उठाने के बाद एक एक करके उसके हर एक टॉपिक को उठाना है, और उस टॉपिक के रिगार्डिंग में आपको डेटा गैदर करना है, उस टॉपिक को कवर करना है. आप उसको कवर कर सकते हैं यूट्यूब वीडियोस के थ्रू, और यदि आपके पास नोट्स है या फिर कोई रिटर्न सोर्स है उसके थ्रू आप उसको कवर करें. ठीक है, उसको कवर करने के बाद उसके आपको नोट्स भी बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स, जो कि रिवीजन में काम आएंगे. उसके बाद हर सब्जेक्ट को ऐसे करके कंप्लीट करना है. हर सब्जेक्ट के टॉपिक को करते करते एक सब्जेक्ट के आपके पास नोट्स बन जाएंगे. फॉर एग्जांपल यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग योर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS आपने उठाई. DBMS के आपने एक एक टॉपिक को कवर किया. फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपने कवर किया कि ER मॉडल क्या होता है, और उसमें कौन कौन से सिंबल्स होते हैं, कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. उसके बाद आपने
उठाई, उसके अंदर एसक्यूएल के बेसिक क्वेरीज, उसके बेसिक कमांड्स, कौन सा कमांड कौन सी कैटेगरी में आता है। फॉर एग्जांपल डीएमएल कमांड्स क्या होते हैं, डीसीएल कमांड्स क्या होते हैं, और इनमें कौन कौन से कमांड्स होते हैं, रोल बैक क्या होता है, कमिट क्या होता है। उसके बाद आपने उसका कवर किया रिलेशनल अलजेब्रा, देन यू कवर्ड योर जॉइंट्स। तो ऐसे करके आपने पूरा डीबीएमएस खत्म किया नोट्स बनाते हुए। फिर हर सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद आपको सब्जेक्ट वाइज मॉक्स देने चाहिए, सब्जेक्ट के क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए, चाहे आप बुक से करो या किसी मॉक वाली वेबसाइट से करो, बट आपको सब्जेक्ट के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। और जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको मिलेंगे कि काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने जिनका आप आंसर नहीं कर पा रहे हो, या फिर वो आपको आते नहीं है, या फिर वो किसी ऐसे टॉपिक में से है जो आपसे मिस हो गया है सब्जेक्ट को कवर करते हुए। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद उस क्वेश्चन को गो थ्रू करना है कि वो क्वेश्चन कौन से टॉपिक में से आया है, उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन और उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको अपनी नोट्स वाली नोटबुक में नोट डाउन करनी है। और फिर वही चीज़ आपको, यही साइकिल आपको रिपीट करनी है सेकंड सब्जेक्ट के लिए। और ऐसे करते करते आपको हर एक सब्जेक्ट को कवर करना है, और हर सब्जेक्ट कवर करने के बाद आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं। और फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने से पहले हर मॉक से पहले आपको अपने नोट्स रिवाइज करने हैं। नोट्स में से जो सब्जेक्ट के नोट्स आपने बनाए प्लस जो क्वेश्चंस जो नहीं कर पाए थे सब्जेक्ट वाइज मॉक्स में, उनके जो नोट्स हैं, तो सबको रिवाइज करने के बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं। और फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने के बाद भी काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो किसी अनफेमिलियर हो या फिर अननोन अनकवर्ड टॉपिक में से आए होंगे, तो उनको भी नोट डाउन करते जाना है। तो एग्जाम तक यही अप्रोच करनी है आपको, और नोट्स को बार बार रिवाइज करना है। तो ये जो मेथड है सिलेबस कवर करने का, ये सबसे आइडियल वे है। इससे आपकी लेंथ, डेप्थ और विड्थ दोनों कवर होंगी सिलेबस की। तो इन मेरे ओपिनियन में आइडियल वे यही है, इसी तरीके से सबको पढ़ना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इस रास्ते से आप जा सकते हो अभी भी, अभी समय रहते आप डिसीजन ले लो अपना। तो उसके बाद मैं बात करूँ सेकंड मेथड की, जो कि थोड़ा सा एफिशिएंट है, मतलब टाइम टेकिंग कम है लेकिन थोड़ा सा रिस्की है। इसमें क्या कर सकते हैं अपन की रिटर्न सोर्सेज है, जैसे कि आपके ओल्ड नोट्स हो गए, आपने पहले कभी नोट्स बनाए हो, ठीक है। यदि आप CSIT बैकग्राउंड से और आपके पास कॉलेज नोट्स रखे हो या फिर कुछ भी सोर्स रखा हो, और या फिर आप मोस्टली फेमिलियर हो सिलेबस से, या फिर आप जैसे रिटर्न सोर्सेज हो गए, जैसे कि ASIT की अड्डा वाली बुक यूज़ करते हो, या फिर हॉलीवुड का बोल्ट पढ़ रहे हो, मतलब जहाँ पे शॉर्ट में लिखी हुई हो चीज़ें, तो उनको पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो। और मॉक टेस्ट में वही बात है कि क्वेश्चन यदि नहीं आ रहे तो उन क्वेश्चन के टॉपिक्स को आप नोट डाउन कर रहे हो, और ऐसे करते करते आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर कर लिए, ठीक है, और सिलेबस आपने ऑलमोस्ट कवर कर लिया। तो ये हो गया दूसरा तरीका, ये थोड़ा एफिशिएंट है, इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स नहीं देखने पड़ रहे हैं, और हर सब्जेक्ट्स के बाइट इन डेप्थ नोट्स भी नहीं बनाने पड़ रहे, क्योंकि आपके पास रिटर्न सोर्सेज ऑलरेडी है, जैसे कि हॉलीवुड का बोल्ट या फिर बुक। लेकिन इसमें उतने ज़्यादा मार्क्स लाना मुश्किल है जितने पहली वाली अप्रोच से लाए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन समय को देखते हुए और काफ़ी चीज़ों को, जैसे कि एफिशिएंसी और लेवल को देखते हुए, काफ़ी लोग इस अप्रोच से जाना चाहते जा सकते हैं मेरे ख्याल से। थर्ड वे पे आ जाते हैं, जो कि हाईली रिस्की है, लेकिन जो लोग मेरी तरह थे लास्ट टाइम पे, जो CSIT के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और उनको वो काफ़ी फेमिलियर है सिलेबस से, मोस्ट ऑफ द सिलेबस से वो काफ़ी फेमिलियर है, तो वो लोग ये रिस्क ले सकते हैं कि रिजल्ट आने के बाद पढ़ाई स्टार्ट करने का। तो ये चीज़ बताने से पहले मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यू हैव सम रिटर्न सोर्सेज फॉर योर क्विक रिविजन, और एटलीस्ट यू आर फेमिलियर विद द सिलेबस। तो मतलब सिलेबस के बारे में आपको पता है कि क्या चीज़ें कैसे होती है, लिटिल बिट डेप्थ में आपको पता है, ठीक है। तो तब आप ये रिस्क ले सकते हैं कि आपको केवल रिवीजन करना है और रिजल्ट के बाद पढ़ सकते हो आप, ठीक है। तो आपको क्या करना रहेगा कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मतलब 2 या 3 सोर्सेज आपके पास होने चाहिए मॉक टेस्ट देने के लिए। तो उन पे आपको मॉक टेस्ट देने हैं फुल लेंथ के, ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, 1 घंटा ही लगता है एक मॉक टेस्ट में, उससे भी कम ही लगता है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, सॉल्व तो करना नहीं है। तो अराउंड 30 to 40 मिनट्स लगते हैं एक मॉक टेस्ट को सॉल्व करने में। उस मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के बाद आपको देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो आप नहीं कर पाए हो, और कौन कौन से क्वेश्चन है जिन टॉपिक को जो टॉपिक्स आपको आते नहीं है अच्छे से, और जिन टॉपिक्स को रिवाइज करने की ज़रूरत है आपको, तो उन टॉपिक्स के नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स अपनी नोटबुक में। और बस यही है, रिपीट यही करना है कि नेक्स्ट टाइम वापस मॉक देने से पहले पिछले मॉक के जो भी टॉपिक्स लिखे हैं आपने उनको रिवाइज करना है, और फिर अगला मॉक देना है। अगले मॉक में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आप नहीं कर पाओगे, और उनके भी टॉपिक्स आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, और नेक्स्ट मॉक से पहले रिवाइज करना है। तो आपको ले दे करना क्या है कि यू नीड टू गिव अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट इन दिस अप्रोच,
and do a detailed analysis of each mock. Make short notes from mock solutions for every unknown question and then revise your notes before another mock. तो ये थी बेसिक अप्रोच. आपको अराउंड मेरे ख्याल से 10 से 7 दिन या हो सकता है 15 से 7 दिन मिल जाए रिजल्ट के बाद. वैसे एवरेज लेके चले तो 10 से कम एक्सपेक्ट करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहेगा. तो 10 दिन यदि आपको मिल जाए रिजल्ट के बाद, मेन से पहले तो आप इस अप्रोच से जा सकते हैं. लेकिन तभी जा सकते हैं जब आपने ऑलरेडी काफ़ी कुछ कवर कर रखा हो, पढ़ रखा हो, फेमिलियर हो, या फिर नॉन मतलब CSIT बैकग्राउंड से ऑलरेडी बिलोंग करते हैं. ठीक है, और आपको पता है कि आपकी एफिशिएंसी काफ़ी हाई है और आप ऐसे करके मार्क्स ले आओगे अच्छे, तो आप इस अप्रोच से जा सकते हैं. लेकिन रिकमेंडेड यही रहेगा कि आप फर्स्ट वाले अप्रोच से जाओ. ठीक है, ठीक से सब चीज़ों को कवर करते हुए. टाइम तो देना ही पड़ेगा यार, क्योंकि इस बार काफ़ी हाई स्कोर करना पड़ेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए. तो उसी हिसाब से अपना डिसीजन लेना अपने लेवल के और पोटेंशियल और एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो यही था इस वीडियो में, यही बताना चाह रहा था मैं आपको. सो थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स नो मैटर व्हाट.